All right, friends. So recording has been started. So today's agenda is we will try to see how toppers write philosophical essays. And in today's session, we will be looking at topper copy of Radhika ma'am. She has scored 140 plus marks. तो इनका जो essay है उसका टाइटल है कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज द बेसिस ऑफ अ गुड लाइफ एंड अ गुड सोसाइटी. तो ठीक है, गुड लाइफ गुड सोसाइटी के बारे में है. एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स अगर करेंगे, हम अदर सेंट्रिक रहेंगे, सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहेंगे, तो फिर गुड लाइफ मिलेगी, गुड सोसाइटी मिलेगी. तो ये ऐसे लिखा हुआ है. शशांक सर पढ़ लीजिए प्लीज. हाँ सर, कर रहा हूँ. So the topic is consideration for others is the basis of a good life and good society. So इन्होंने begin किया है महात्मा गांधी की quote से कि the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. The year was 1983. M.K. Gandhi was traveling in a train in Pietermaritzburg, South Africa, when the first class ticket. He was thrown out from the compartment because it was presumably whites only. Gandhiji, despite having legal entitlement to travel in the coach, had to suffer the racial abuse. He could have protected it and ignored it since he was going to South Africa for a small legal project. It was his consideration for others that prompted him to fight against the discrimination. He spent 20 years in Africa to ensure justice for Indians. Later, this one incident changed his entire political career, and back home, he became the tallest figure of Indian freedom struggle. This consideration for others did not just lay foundation for a good life and good society in India, but it also inspired many other people who went on to become great leaders. Nelson Mandela's fight against apartheid or Martin Luther King's fight against racism are testimony to that. History is replete with such examples where people have shown such consideration and altruism, thereby bringing changes in various spheres. Social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Jyotiba Phule, Baba Saheb Ambedkar, freedom fighters like Nehru, Patel, Lal Bahadur Shastri stood tall in displaying such considerable attitude towards others. This laid the foundations for a society which, despite having tremendous diversity, showed tolerance, harmony, empathy, we feeling, brotherhood, and mutual respect. अच्छा सर, इनके साथ साथ जो इनको एग्जामिनर ने मतलब इसके इवेल्युएटर ने कमेंट्स दे रखे हैं वो भी देखते जाएं क्या, कि वो हाँ बाद मतलब में एक पैरा कर लो, फिर कमेंट भी देख लेना. है ना, क्योंकि वही चीज है, देखते हैं. जैसे अब इन्होंने फर्स्ट जो लिखा था इंट्रोडक्शन, तो कोट इनकी अच्छी थी, ठीक है. उसके बाद इसमें लिखा है कि डू नॉट लाइक लॉन्ग इंट्रोडक्शन. वही मुझे पढ़ते समय भी लगा कि इन्होंने एकदम से बस एग्जांपल्स की बाढ़ सी कर दी. देखिए इसमें लिखा भी है, ऑल्सो डिफाइन कंसिडरेशन टू गिव अ लिंकिंग पर्सपेक्टिव. वेरी क्लासिक एग्जाम्पल जस्टिफाइंग थीम ऑफ एसे. मतलब वही गांधी जी वाला हम डाइवर्सिफाई भी कर सकते थे. डिस्क्राइब इन डेप्थ व्हाट काइंड ऑफ कंसिडरेशन वाज शोन बाय दीज लीडर्स. इलेबोरेट. मतलब रेदर देन जस्ट राइटिंग नेहरू, पटेल एंड अंबेडकर, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में छोटे छोटे अलग से पैराग्राफ बना सकते, तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता. फिर आते हैं इनके नेक्स्ट पैराग्राफ में. लीडर्स लाइक लाल बहादुर शास्त्री जी gave up one meal in a day when the country faced food shortage. Such behavior displayed at the highest level not only shows the character and virtue but also sets an example for everyone to follow. This leading by example is in its true sense ensures a good life and society, for it has the potential to start a virtuous cycle of goodness. Several other such individuals have tried to endure such considerate behavior in their individual capacity, from Sharmila's long fight to repeal AFSPA, ठीक है, Medha Patekar's organization and leadership for displaced and marginalized in Narmada Dam replacement, Narmada Bachao Andolan, or Greta Thunberg, a 13-year-old's fight for environmental justice and speaking truth to the power. All of these signal towards one common underlying theme, that is the consideration for others. इस पे इनको कमेंट मिला है, more in-depth analysis is needed of these examples. Okay. Such considerate behavior does not necessarily needs one to be educated, literate in the strictest sense. The only needed values of compassion,
it only needs values of compassion, empathy, righteousness towards others. Keme Goda, an illiterate shepherd, builds 16 ponds in hilly regions so that animals don't suffer in summers. Okay. Then Salumarda Thimka, an 80-year-old lady who took care of 8,000 trees as her own child, are examples of true altruism and environmental compassion. Thus, satisfaction that these individuals derive from consideration enables a good life, not just for themselves but also for others. It starts a ripple effect in the society. It nudges others to adopt similar behavior and thus lays foundation for an enabling society. Such considerations at times also force powerful people to correct their ways. Edward Snowden, when found while working with NSA in the US that privacy of individuals is being जस्ट अ मिनट वो मेरा स्क्रॉल डाउन हो गया था Here it is. Yeah, privacy of individuals is being breached. He leaked the data in the public domain. Although his actions does compromise national थोड़े grammatical error है इनके although his action does compromise होगा national security, but his consideration and rationale for larger public interest gives a reason for his action. Similarly, back home लग रहा है इन्होंने अनुदीप दूरी शेट्टी सर वाली चीज उठा ली ना, जैसे हम लोग उस दिन पॉइंट आउट कर रहे थे वो कि बैक होम वो यूज करते हैं रेदर देन ऑफ इंडिया, है ना ऋषभ सर? हाँ हाँ सही है वही लग रहा है. Similarly, back home during 1975 emergency, Justice H.R. Khanna in ADM Jabalpur v. Shivkan Shukla case gave the only dissenting judgment that justice is not the gift of law, it is inherent for every individual. It costed him his Chief Justice manship, but later 44th Amendment paved the way for ensuring liberty of people during emergency. तो इसके लिए लिखा गया है गुड आर्टिकुलेशन, गुड कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ थीम विद गुड एग्जांपल्स. हाँ, इनके एग्जांपल्स काफी डाइवर्सिफाइड है. It shows how acting considerate towards others can potentially benefit millions, even if in the short run a small price is paid. Okay. In realms of sport, it has the potential to set stage for true sportsmanship and ensure honesty and ethicality. The story of Kenyan runner, again, so many examples. Abel Mutai, French runner Ivan Fernandez is a case in point here. Abel Multai, while running, got confused with signs and stopped 10 meters before the finish line, thinking he has won. In that split second, Ivan showed integrity and signaled him to keep running. Okay, this split second integrity of Ivan led Label Mutai to win, the true deserving winner, and displayed highest standards of consideration towards others. It is this incident which reflects the idea that when we show compassion towards others, there is morality in society that gets generated. This morality in future ensures sustainability in living together in bracket harmony. Okay, good. Our constitution has too shown such consideration for others. Its social justice idea of preamble, safeguards for minorities, ensuring equal rights for all are a reflection of that thought. The idea of tribal Panchsheel, to ensure that their culture and way of life does not get threatened by a majority, reflects the same aspirations of our early leadership. But there is a flip side to this story. Of late, there have been various instances where such consideration is often sidelined. तो अब ये यहाँ पर अपना काउंटर मतलब व्यू भी प्रेजेंट कर रही है. Rising individualism and me-centeredness in the society, intolerance towards other sections, manifesting itself in the form of caste violence, mob lynching atrocities, are a bleak reminder of fading considerate attitude. Even at the global level, we have seen cases of intolerance in form of blacks being murdered by Minneapolis police, George Floyd case, okay, Simon Party, a French
teacher beheaded by a radicalized student shows just how we as a society are increasingly getting intolerant. Thus, this respect for global institutions like WHO, WTO, and the UN, rising nationalism, protectionist policies, blatant abuse and misuse of environment and ecology at a pace beyond its recouping capacity, signal towards a possible chaos in near future. Today, this consideration toward others has become a matter of convenience and benefits him. The consideration is displayed as action in good faith. Otherwise, it is rejected on various bias, be it national interest, societal interest, or individual interest. Very good coherence and flow of ideas plus good connectivity between paras. Okay. But we must not forget that we humans are social animals. If civilization history is allowed to make a point, it aptly shows how, with evolution of fire, the idea of socialization and social bonding evolved. That social bond further led to development of various institutions like kinship, marriage, political organization, etc. Had that social bond and consideration not developed, the societal progress at such fast pace would have never been materialized. Chaos, competition, and confrontation would have continued. The philosophical idea of one world, Vasudev Kutumbakam, including animals, flora, fauna, etc., can only establish itself when there is consideration. That consideration at individual level will give a good life, at the societal level, good society, and at global level, a world that is truly one and united. So that's the end. Also give a way forward what should be taken in virtue. मतलब हाँ way forward इनसे पूछा. Also mention the importance of consideration in contemporary world problem. Okay, so that's it. कोई और मतलब अपने कमेंट देना चाहेगा कि सुन के कैसा लगा है सबको इनके फीडबैक में कि क्या और पॉइंट्स आ सकते थे इस ऐसे में. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना, मतलब ये स्ट्रक्चर, सिर्फ टॉपिक का नाम क्या है एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि कई लोग नए पे आए अभी. ओके. एक बार क्विक समरी भेज जाएगा, क्योंकि ट्रैक भूल जाते हैं ना बीच में. हाँ हाँ. टॉपिक था कि कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज द बेसिस ऑफ अ गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी. तो इन्होंने गांधी जी के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था कि कैसे उनके साथ जब उनको पोस्ट मैस्टिक बर्थ में साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका था, तो उसके बाद उन्होंने एज अ कॉज ही ले लिया उसको कि वो सबके जो ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंस हो रहा है तो उसके खिलाफ मतलब वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे. जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. और फिर उन्होंने दिखाया कि कैसे नेल्सन मंडेला और डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स, राजा मोहन रॉय एंड ये सब, इन लोगों ने भी दे हैव बीन कंसिडरेट अबाउट अदर्स. तो इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन रहा है जो थोड़ा सा लॉन्ग चला गया है. उसके बाद इन्होंने बताया है कि एनवायरमेंटल फील्ड में मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन और फिर ग्रेटा थनबर्ग वगैरह ने भी कैसे दूसरों के लिए कंसिडरेट हुए हैं. फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा उधर आए हैं, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में और एक्टिविस्ट फील्ड में आए हैं. तो इन्होंने काफी ट्राइबल लीडर्स या फिर जो मेरे ख्याल से पद्मा अवार्डीज वगैरह हैं उनके नाम इन्होंने डाले हैं कि वो लोग भी कंसिडरेट हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी. उसके बाद ये आए हैं कि सच कंसिडरेशन वाज पावरफुल एडवर्ड स्नोडेन. हाँ, स्नोडेन का एग्जांपल दिया, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जांपल दिया. मतलब इनका ऐसे फुल ऑफ एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स ओनली. उसके बाद इन्होंने इंडिया में आकर के 1975 मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जांपल दिए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, जस्टिस एचआर खन्ना और जुडिशरी रिलेटेड की हाउ ही बीइंग कंसिडर्ड. उन्होंने कोई ऐसी वर्डिक्ट पास की जो जनता के लिए फायदेमंद थी लेकिन उनकी खुद की प्रमोशन वगैरह के खिलाफ हो गई थी, तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे, ऐसा उन्होंने बताया. फिर है स्पोर्ट्स का एग्जांपल इन्होंने दिया है कि स्पोर्ट्स में कैसे किसी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है कि दो लोग थे तो उसमें से एक जीतने वाला था और उसको कंफ्यूजन हो गया था कि रेस लाइन पहले ही खत्म हो गई है, तो वो रुक गया. लेकिन जो सेकंड नंबर पे था तो उसने उसको इशारा किया कि नहीं अभी 10 मीटर आगे है, तो दिस शोज कि दूसरों के लिए कंसिडरेट होना. तो अगेन इट इज फुल ऑफ एग्जांपल. फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन पे आई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहाँ कहाँ कंसिडरेट होना सिखाया दूसरों के लिए, क्या प्रोविजंस है.
इसके बाद थोड़ा सा ये एथिक्स टाइप पे आई है कि टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, कास्ट वायलेंस, ये सब हो रहा है सोसाइटी में, क्या प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी हो रही है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद अब ये थोड़ा सा नेगेटिव फ्लो लेती है। अभी तक उन्होंने सारे पॉजिटिव एग्जांपल दिए हैं कि कंसिडरेशन कहाँ कहाँ दिखा था हिस्ट्री में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी। अब ये आई कि कंसिडरेशन कैसे कैसे कम होता जा रहा है, लोग प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं और अपना इंडिविजुअलिज्म ढूंढ रहे हैं, और यही सब चीजें हैं। सोशल बॉन्ड कम हो रहा है और सोसाइटल प्रोग्रेस वगैरह मटेरियलाइज हो रही है, तो ये सब बताया है। बस फिर उन्होंने वन वर्ल्ड बोल के कि खत्म कर दिया कि इंडिया वासुदेव कुटुंबकम पे विश्वास रखता है और हमको यूनाइटेड होना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा लेंथ में ऐसे छोटा है ये। एक बार पेजेस देखते हैं कितने पेज का था। 10, 11, नहीं है तो 11 का, लेकिन वही है, इन्होंने इनको स्टार्टिंग में कमेंट में यही मिला, इन्होंने एग्जांपल्स तो काफी दे दिए हैं लेकिन कम वर्ड्स का यूज करके उन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन और कर सकते थे, मतलब स्कोप और था। आप लोग बताइए मतलब क्या क्या चीज आप लोगों को लग रहा है कि और ऐड कर सकते हो इसमें। मेरे ख्याल से गुड लाइफ वाला कंपोनेंट इन्होंने ज्यादा टच नहीं किया है, जहां तक मेरे पढ़ने में आया है। इसमें इसमें कोट्स भी ज्यादा नहीं है ना शायद, इस ऐसे में दो कोटेशन चीजें की कमी लग रही है। कि कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज द बेसिस ऑफ अ गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी, तो उन्होंने गुड सोसाइटी मेरे ख्याल से काफी दिया है, लेकिन गुड लाइफ वाला एस्पेक्ट टच करता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है। मतलब दैट्स माय व्यू, मेरे को जो पढ़ के लगा। गुड सोसाइटी के तो खूब एग्जांपल आ गए, लेकिन गुड लाइफ पे बहुत कुछ आ सकता था। और एक और चीज, हैज शी डिफाइंड गुड कंसिडरेशंस, गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी? भाई दैट्स डिफिनेशन दिखा नहीं मेरे को। व्हाट इनके इवैल्यूएटर ने भी कमेंट में डाला कि इंट्रोडक्शन में आप एटलीस्ट ये बता सकती थी कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन फॉर अदर्स एंड गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी। जिन्होंने नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ एग्जांपल से ही स्टार्ट कर दिया और एग्जांपल्स ही फिल करते चली गई हैं। लेकिन अच्छे हैं एग्जांपल्स, अच्छे हैं, बहुत डाइवर्स हैं और यूनिक एग्जांपल है, लेकिन वही बात है, दैट शुड हैव बीन अ बॉडी नॉट एन इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स में ये चीज़ ठीक है, इंडिया तक लिमिट नहीं थी, ये बाहर भी गए, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दिए, जैसे जॉर्ज फ्लोइड का हो गया था, या फिर फ्रांस से रिलेटेड जो इशू था उसका एग्जाम्पल दिया, बट इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। और इसके अलावा एक वो कर सकते थे, जैसे कोई एनजीओज वगैरह, उनका एग्जाम्पल दे सकते थे कि जैसे वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और सो ऑन। सो इट आल्सो कुड बी एडेड। अच्छा, मुझे मतलब दो चीजें मिसिंग लगी। मतलब एक चीज अभी नजर आ रही कि यार, अगर आपका ऐसे में कंटेंट कितना भी अच्छा हो ना, अगर आपने एक दो फंडामेंटल चीजें मिस कर दी ना, तो इट वुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। जैसे अगर आप डिफाइन ही नहीं कर रहे हो, मतलब जो जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं ऐसे के अंदर, उसको अगर आप इलेबोरेट नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, डिफाइन नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर जो डिबेट है, जैसे गुड लाइफ के ऊपर पॉलिटिकल साइंस में काफी सारा डिबेट है। सोक्रेटिस बहुत कुछ बोलता है, मटेरियलिस्ट लोग कुछ अलग बोलते हैं, आइडियलिस्ट कुछ बोलते हैं। ये थोड़ा सा लेके आना चाहिए था। सेम थिंग फॉर गुड सोसाइटी, मतलब व्हाट इज गुड सोसाइटी यार? तुम्हारे लिए कुछ अलग होगी, मेरे लिए कुछ अलग होगी। ये चीज ये। और एक और चीज, जैसे अनुदीप यूनिवर्सिटी की कॉपी में देखा था ना अपन ने कि एक एंकर पैराग्राफ होना चाहिए कि पूरे ऐसे में हम किस तरीके से जाने वाले हैं। उसका एक इंट्रोडक्टरी फ्रेमवर्क नहीं दिखा कहीं पे भी, आगे भी नहीं, लास्ट में भी नहीं। और एक और चीज, जो ऐसे की जो स्टार्टिंग है, उसमें आई थिंक उन्होंने गांधी जी का स्टोरी दिया है, उसके बाद में उन्होंने कुछ उसका और टॉपिक का लिंक करा है कुछ? दिखा ना फर्स्ट पेज। समझ गया ना मेरा क्वेश्चन? क्या चीज सर, मैं एक मिनट जो मेडिसिन लेने स्टार्टिंग गया में गांधी जी का स्टोरी दिया है ना सबसे पहले, तो था। उसको क्या उन्होंने ऐसे के टॉपिक से लिंक करा है? मैं वही कह रहा हूँ, मुझको तो वो कॉन्सोनेंट्स दिखाई ही नहीं। मतलब वो तो ऐसा लग रहा है कि फिट कर दिया वो। उन्होंने भी मेंशन किया, काफी क्लासिक एग्जांपल है वही कि फर्स्ट पेज कहाँ है? स्क्रॉल यही है करिए, क्या फर्स्ट पेज? बस यहीं से स्टार्ट है। हाँ, यहाँ से होगा ना। इंट्रो तो अच्छा है, मतलब एक कोट अच्छा दिया हुआ है। फिर इसमें वो भी तो आ सकती है यार, क्या था वो? अरे यार, क्रिश्चियन कौन थी वो? मदर टेरेसा, एपिटोम ऑफ सर्विस। आजकल तो वही न्यूज में है। हाँ, फिर विवेकानंद भी आ सकते हैं, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब वही है, गांधी जी पे सभी लोग लिख देंगे तो इंट्रोडक्शन काफी
पुराना सा हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इस ऐसे में जो टॉपिक का ऐसे ऐसे का टॉपिक क्या है, कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज द बेसिस ऑफ गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी, इसमें क्या क्या और कोटेशन आ सकते हैं बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ, क्विकली वैलिडेट कर दो। मुझे लग रहा है सॉक्रेटिस तो आना चाहिए था गुड लाइफ के बारे में, तो क्योंकि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग वो बोलते हैं ना, तो बिल्कुल, एग्जामिनेशन ये ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज तो गुड लाइफ आया और सोक्रेटिस के बारे में नहीं लिखा है, तो फिर तो गड़बड़ ही है। और एक और चीज बोल सकते हैं ना कि गुड लाइफ इज अ मेनली अ फिलोसॉफिकल ऑब्सेशन ऑफ आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, या फिर आइडियलिस्ट स्कॉलर जो होते हैं ना, हु बिलीव इन आइडियाज, हु बिलीव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अदर वर्ल्डली जो होते हैं, वहां पे ज्यादा ऐसा होता है। फॉर मटेरियलिस्ट स्कॉलर्स लाइक हॉब्स वगैरह, या फिर जो बाद में लेटर लिखते हैं कार्ल मार्क्स वगैरह, फॉर देम मटेरियल वेलबींग या फिर यूटिलिटी बोलते हैं ना, यूटिलिटी ऑफ लाइफ, प्लेजर एंड पेन वाला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर गुड लाइफ। बिल्कुल, आई मतलब वो थिंक कॉन्करेंट। कार्ल मार्क्स सर ऐसा कुछ डिफाइन करता है ना कि मैन इज अ सोशल क्रिएटिव बीइंग, तो अगर हर एक मैन को अपने अपने फ्रीडम की तरह काम करने का मौका मिले, देन ही कैन बी अ हैप्पी पर्सन, देन इट कैन बी अ गुड लाइफ फॉर हिम। मतलब ही शुड बी फ्री फ्रॉम नेसेसिटीज, ऐसा बोलते हैं ना वो, प्रोडक्शन के नीड्स से वो फ्री होना चाहिए इंसान, कोई भी हो, क्रिएटिविटी को बाहर आने का मौका मिलना चाहिए, दैट्स अ गुड लाइफ फॉर कार्ल मार्क्स। ये डिबेट कहीं ना कहीं आना चाहिए थोड़ा सा इसमें। और बताओ बाकी किसी को याद आ रहा है तो कुछ कोट्स वगैरह। और एक और शायद डिबेट है ना, गुड लाइफ फॉर वन पर्सन इज नॉट नेसेसरली गुड लाइफ गुड सोसाइटी। कम्युनिटेरियंस बोलते हैं ना कि हर किसी को अपना अपना फ्रीडम ऑफ हाँ, थॉट मतलब एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल गुड कैन नॉट ऑलवेज बी इक्वेटेड टू सोसाइटल गुड, है ना? हाँ, मतलब वो ये भी एक डायमेंशन आनी डायमेंशन चाहिए थी होता मेरे को लग रहा है। है। हाँ हाँ, मतलब वही सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें ना जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है ना, पूरा एथिक्स का जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट डाल सकते थे। लाइक एक चाणक्य ऐसा कुछ था ना, जिसके अकॉर्डिंग गुड लाइफ बस बॉडी प्लेजर्स है, वो लोग आफ्टर लाइफ में नहीं मानते, तो वो एंगल डाल सकते थे। और ऐसे करके मतलब जितने भी थिंकर्स के व्यू पॉइंट थे काफी सारे आ जाते हैं। बताओ बताओ और क्या आएंगे बताओ। जैसे मैंने विवेकानंद बोल दिया, गांधी जी का लिखा है ये, मदर तेरेसा बोल सकते हैं, और क्या आएगा। जैसे गौतम बुद्धा को भी कोट कर सकते हैं ना अपन, कि वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू ऑल दिस थिंग्स, मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली प्लेजर्स, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस वगैरह, तभी गुड लाइफ मिलेगा। इसमें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं, जो पास्ट आईएएस ऑफिसर्स वगैरह रहे हैं उनके, जो न्यूज में आता रहता है। अभी भी जैसे लेटेस्ट कोविड का एग्जांपल, मतलब उसमें से इन्होंने कोविड का कुछ मेंशन नहीं किया है, कोविड रिलेटेड भी बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऐसे, है ना? मतलब कि कंसिडरेशन फॉर अदर्स में डॉक्टर्स भी डाल सकते हैं, क्यों सर? कि डॉक्टर्स ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सब सेल्फलेसली वर्क किया, कितने लोगों ने अपनी लाइफ भी लूज इंडिया की को है। इंडिविजुअली डाल सकते हैं ये इसमें, जैसे इंडिया ने जैसे अदर कंट्रीज की हेल्प की तो उसके हाँ, उसको भी बिल्कुल मेंशन बिल्कुल। करें। हाँ। भी आएगा, क्योंकि जब वैक्सीन हमारे पास कम थी, हमने पहले बाहर भेजी है काफी जगह, स्पेशली अफ्रीका। क्यों सर? बताइए ऋषभ सर। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे गुड लाइफ या गुड सोसाइटी बोल सकते हैं ना, कि इंटरनेशनल स्फीयर में गुड सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब जो अदर्स रिगार्डिंग एक्शन जो होता है ना, कि हम दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, काइंड ऑफ अच्छा पॉइंट था ये इंटरनेशनल लेवल का। ये किसका था वैसे इन्वायरमेंटल एंड एग्जैक्ट और अदर्स रिगार्डिंग वाला? ये कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था? ये मिल इसको? वाला है ना, मिल वाला वो अलग है। ओके ओके ओके। मतलब हाँ, वो वो तो अलग है फ्रीडम ऑफ मतलब। स्पीच के लिए बोलते हो, अलग है थोड़ा सा वो, हाँ हाँ हाँ। मैंने गलती से वर्ड यूज कर लिया वो। बट नहीं नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल में, हाँ हाँ। मतलब एक इंटरनेशनल डायमेंशन आना चाहिए था जिसमें हम बोल सकते थे कि ठीक है, बाकी लोग को हेल्प करने से गुड लाइफ गुड सोसाइटी बनेगी, तो इंटरनेशनल कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड भी बन जाएगा, जिसमें काफी सही रहेगा। ठीक है, और बताओ। सोसाइटी बी रिस्ट्रिक्टेड टू मतलब आवर नेशन ओनली, मतलब पूरा ग्लोबलाइजेशन का दिखाना है कि सब लोग
सारे वन हेल्थ अप्रोच भी आ सकती है इसमें। सर सर GS3 इसमें का इन्वायरमेंटल ग्रुप में GS3 का पेपर आ गया ग्रुप में। ठीक है, तो इफ दैट्स द केस देन आई थिंक इसमें कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऐसे के बारे में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स करने हैं किसी को बिफोर वी गो टू GS3 पेपर? इस ऐसे में मतलब अगर हम इस मैम के ऐसे से लेना है तो हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरिंग काफी मिसिंग थी, ये कहूंगा। हम इसमें इनके एग्जांपल्स काफी डाइवर्सिफाइड थे, तो वी कैन पिक अप एग्जांपल्स, बट जैसे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है तो बहुत सारे डायमेंशंस आ सकते थे उसके अंदर। यही है इसका मतलब टेक अवे। Okay, all right, friends. Thank you very much for participating in the essay. It was a great learning session for all of us, and I request you all to please like and share and subscribe the YouTube channel. This video will be uploaded on YouTube channel. Please like कर लेना, ठीक है? चलो, bye guys, thank you.